Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 16 for Human Resource Development and here we will discuss HRD in other sectors. The topics to be covered are contextual background, HRD in the defense services, HRD in police administration and HRD in Panchayati Raj institutions and rural development. Now first we will start with contextual background. Unlike in many Western laissez-faire society, government and public systems in India have a prime role to play in piloting socio-economic development. This is because our socio-economic, political and historical context necessitates a proactive, positive role of the state in order that India can catch up with the progress which the developed nations have attained. So, ऐसा इसलिए होता है इंडिया में कि जो प्राइम रोल है वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होता है क्योंकि हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है किसी भी स्टेट के ऑर्डर में. देन A serious defect of the development strategies of many developing countries have been the insufficient attention paid to administration and management of human resources. So, बेसिकली जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी डेवलपिंग कंट्री की स्ट्रैटेजी का वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट को. Consequently, while development increases the importance of human competence, the low level of administrative and managerial capability due to neglect of HRD creates serious disequilibrium in planned development because the magnitude and complexity of development tasks continuously outpace administrative and management capability. Then, public systems such as the police and local administration have been especially affected by the high degree of social changes which have swept the country during the last decade. So, पब्लिक सिस्टम जैसे कि पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है किसी भी सोशल चेंज को और इसीलिए लास्ट डेकेड में इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा रहा है हमारी इंडियन सोसाइटी पे. Then next is the concept of HRD emphasizes the need to create a positive and healthy climate in an organization to enable its employees to increase their work motivation, initiative and commitment to the organization. So HRD का जो concept है वो basically emphasize करता है कि कैसे हम healthy climate बना सकते हैं और उसको कैसे positivity उसमें स्प्रेड कर सकते हैं ताकि एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बढ़े और वो अच्छे से अपना काम कर सके. इट एम्स टू क्रिएट अमंग एम्प्लॉयज अ सेंस ऑफ प्राइड इन देयर वर्क एंड डिराइव अचीवमेंट फ्रॉम गोल फुलफिलमेंट. देन नेक्स्ट इज HRD in the defense services. Now the concept of HRD is especially relevant in the defense services. Defense services में HRD का बहुत बड़ा रोल है. ऑर्गेनाइजेशनली द डिफेंस सेक्टर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट डिफरेंशिएटेड एंड जियोग्राफिकली डिस्पर्स सिस्टम्स ऑफ द कंट्री. डिफेंस सेक्टर रिप्रेजेंट करता है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट कि कैसे हम अपने सिस्टम्स को डिस्पर्स्ड वे में भी मैनेज कर सकते हैं. सो इसलिए HRD का बहुत बड़ा रोल होता है डिफेंस सर्विसेज में. इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट दैट इज IDM which was started in Secunderabad in December 1970 has augmented the process of development of the officers of the defense services. सो IDM 1970 में शुरू हुआ था सिकंदराबाद में और इसी से ऑफिसर्स जितने भी हैं उनकी डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था कि डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर्स की डेवलपमेंट कैसे हम कर सकते हैं, उनको कैसे और ज़्यादा स्किलफुल बना सकते हैं. देन इट्स मेन एम इज टू prepare the officers to meet emerging personnel and technological needs of the defense services and thereby enhance the operational preparedness of the
सर्विसेज। सो इनका मेन एम होता है कि कैसे ऑफिसर्स को इमर्जिंग चैलेंजेस, जो आगे चैलेंजेस आएंगे उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो टेक्नोलॉजिकल नीड्स जैसे चेंज होती रहती हैं उसके साथ उन्हें कैसे केपेबल बना सकते हैं कि वो हर टाइप की प्रॉब्लम को हैंडल कर सकें। देन द टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स आर create self-awareness in participants through introspection, retrospection and self-study। कि इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन और सेल्फ स्टडी के थ्रू कैसे हम सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स के बीच में। देन improve their knowledge of individual differences relating to the affective side of personality like values, attitudes and motives। So knowledge कैसे improve कर सकते हैं किसी भी individual की, ताकि उसकी values, attitudes और motives में changes आ सके। Then third is improve their understanding of the process of communication, especially its transactional nature involved in personal and organizational communication। कि कैसे हम एक किसी भी इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो प्रोसेस को ढंग से समझ पाए। देन इम्प्रूव देयर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बाय डेवलपिंग इमोशनल मैच्योरिटी, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी एंड एम्पैथी। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए कि वो इमोशनली कैसे मैच्योर बिहेव कर सकता है, टॉलरेंस कैसे दिखा सकता है अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए, और कैसे एम्पैथाइज कर सकता है वो अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ। देन improve their skill of making better use of human resource for increasing organizational effectiveness। कि हम कैसे improve कर सकते हैं अपने skills को या उनके skills को कि वो better उन्हें utilize कर सकें और organization की effectivity को increase कर सकें। Then next is HRD in police administration। Now police services are necessary to protect the country from internal threats and to maintain the condition of law and order, without which no other organizations or individuals would be able to function। Police services are necessary to protect the country। country को protect करने के लिए necessary है कि कैसे उन्हें internal threat से बचा सकते हैं and कैसे हम एक law and order maintain करके रख सकते हैं एक किसी भी country में, ताकि कोई और organization या individual उसको harm ना पहुंचा सके। Then the individual police system was conceived as early as in 1861। So सबसे पहले पुलिस सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1861 में और उसको रीमॉडलिंग उसकी हुई थी 1902 में। Then a study of police administration recently revealed that while there were some strengths like loyalty, dedication, job security and esprit de corps in the police service, it also suffered from severe weaknesses due to excessive political interference, corruption and lack of open interaction among members। So जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी स्टडी से ये रिवील हुआ है कि काफ़ी सारी एडवांटेजेस थी जो हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था पहले, उसमें काफ़ी सारी स्ट्रेंथ्स थी जैसे कि लॉयल्टी थी, डेडिकेशन थी, जॉब सिक्योरिटी थी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ड्रॉबैक्स और वीकनेसेस भी थी जैसे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करप्शन एक्सेट्रा। सो द रिकमेंडेशंस मेड फॉर इम्प्रूविंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वर दी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सैलरीज एंड बेनिफिट्स, कि कैसे सैलरीज और बेनिफिट्स को रीस्ट्रक्चर करके हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट कैसे प्रॉपर हो सकती है, फिर ट्रेनिंग प्रोसीजर्स को चेंज करना, उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल को इम्प्रूव करना, देन बेटर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन विद इन दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेजर्स टू इम्प्रूव पुलिस कम्युनिटी रिलेशंस। Then in order to ensure maximum utilization of human resources to help attain organizational objectives, an integrated system was recommended। कि कैसे हम human resources को maximum utilize कर सकते हैं और एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो है, मेन पर्पस और मिशन जो है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम रेकमेंड किया गया था। और इस इंटीग्रेटेड सिस्टम जो रेकमेंड हुआ था इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हम एक ऑब्जेक्टिव रिक्रूटमेंट मेथड डेवलप कर सकते हैं जो कि मैन पावर प्लानिंग और फोरकास्टिंग पे बेस्ड होगा। देन इंडक्शन एंड ट्रेनिंग सिस्टम टू बेटर ओरिएंट पुलिसमैन
to the demands and changing needs of society in technology, कि जैसे जैसे demands और society की technology और needs change हो रही हैं उसके हिसाब से हम कैसे अपने पुलिसमैन या पुलिस स्ट्रक्चर को एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर तरीके से ओरिएंट कर सकते हैं. देन करियर मैनेजमेंट, a uniform promotion policy based on more objective appraisal systems. Then policies and systems for individual and collective grievance handling. पॉलिसीज और सिस्टम्स को जो इंडिविजुअल के लिए है और कैसे उसको मैनेज करना है और ग्रीवेंसेस को कैसे हैंडल करना है. देन कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर पॉलिसीज एटसेट्रा. उसके बाद है HRD in Panchayati Raj institutions and rural development. So now we can see that India is a predominantly rural and village based society. India village based society है despite rapid urbanization. Urbanization के बाद भी इंडिया की जो 3/4 population है वो अभी भी villages में रहती है. That is why the concept of rural development and the strengthening of rural-based administrative institutions has continued to enjoy a high priority in the development policies and strategies of the country. और इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर population in villages में रहती है कि रूरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया और कैसे रूरल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, एक इसको हाई प्रायोरिटी दी गई कि कैसे हम अपनी पॉलिसीज को डेवलप कर सकते हैं और एक कंट्री की स्ट्रैटेजीज को मेंटेन कर सकते हैं. सो द रोल विच पंचायती राज वाज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल वाज first is to encourage participative decision making at the micro social level by involving people in decision making relating to various activities affecting them. So कैसे हम decision making को encourage कर सकते हैं किसी भी social level पे ताकि उसमें लोग और ज़्यादा involve हो और सबका decision एक unbiased decision लिया जा सके. Then to look after day-to-day administration of local areas by mobilizing resources and administering day-to-day facilities. कि कैसे हम day-to-day administration या day-to-day operations को देख सकते हैं, areas को mobilize कर सकते हैं, resources को mobilize कर सकते हैं और उनकी facilities को administer कर सकते हैं. Third is formulating micro-level plans on the basis of the constraints of development. जो भी हमारी conditions हैं या constraints हैं जो हमारी डेवलपमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए माइक्रो लेवल प्लान्स को फॉर्मुलेट करना. देन फोर्थ इज टेकिंग केयर ऑफ लोकल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड working for the awakening of the people and making them aware of their plights and rights. People को में कैसे awareness develop कर सकते हैं और कैसे उनकी जितनी भी grievances हैं और उनके rights हैं उनको कैसे उनके बारे में बता सकते हैं. Then next is the by and large failure of the Panchayati Raj system is due to a number of social and political factors. Now Panchayati Raj fail क्यों हुआ? इसमें social और political factors दोनों involved हैं. जैसे first है for a long time the leadership of the local Panchayati Raj institutions was in the hands of the vested interest in the rural areas, the upper caste and land owning क्लासेस. यानी कि जो विलेजेस में अपर कास्ट थी या लैंड ओनिंग क्लासेस जो थी जैसे कि ठेकेदार जो थे उनके पास ही ज्यादातर उनकी लीडरशिप रहती थी, पंचायत की लीडरशिप रहती थी और इसीलिए वो हमेशा अपने से बायस हो गए ही डिसीजंस लेते थे. ये भी एक वजह है कि क्यों पंचायती राज सिस्टम फेल हो गया. देन सेकेंड इज द एब्सेंस ऑफ ट्रेन्ड कॉम्पिटेंट पीपल टू कैरी आउट द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन दी पंचायती राज बॉडीज. कि जो ट्रेन्ड कॉम्पिटेंट पीपल थे जो ट्रेन थे यानी कि जैसे कि जो किसी भी डिसीजन लेने में थोड़ी ठीक से काम कर सकते हैं और स्किलफुल थे वो लोग वहां पे नहीं होते थे. तो एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क उन लोगों के पास था जो ठीक से केपेबल नहीं है, जो अपना काम ठीक से नहीं कर सकते. And such tasks require not only functional skills such as financial management and technical skills for basic management in organization but also appropriate attitudes and values.
और जब एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क कोई करता है या किसी को एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क दिया जाता है तो उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स भी देखे जाते हैं, टेक्निकल स्किल्स भी उसमें होने चाहिए और साथ में उसकी एटीट्यूड और वैल्यूज को भी चेक किया जाता है। और इनमें से कोई भी कैपेबिलिटी उन लोगों में नहीं थी जो पंचायती राज के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल कर रहे थे। And third is the absence of proper and adequate organizational structure and institutional mechanisms to lend stability and continuity to the Panchayati Raj institutions is another reason for the poor performance of these bodies। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था, उसको ठीक से डिजाइनिंग उसकी नहीं की गई थी, जो मैकेनिज्म्स थी उनमें भी स्टेबिलिटी नहीं थी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में एक कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हुई थी। इसी वजह से जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत खराब थी। Then from the HRD point of view, the major priorities for the success of Panchayati Raj and Rural Development Institution are जो मेजर प्रायोरिटीज हैं किसी भी पंचायती राज के सक्सेसफुल होने की, उसमें मेजर जो चीजें आती हैं वो है, जैसे कि पहली है क्लैरिफाइंग पर्पसेस एंड इंश्योरिंग दैट दीज आर रिफ्लेक्टेड इन पर्टिनेंट स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, कि कैसे हम अपने पर्पस को क्लैरिफाई कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो जो हमारी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज जो हम बना रहे हैं उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है और मिशन है वो क्लियर होना चाहिए। सेकेंड इज डेवलपिंग पीपल as change agents and as culture builders to bring about necessary transformation in dysfunctional cultures existing in the rural areas। तो कोई ऐसे people हायर करने जो चेंज एजेंट्स हो या कल्चर बिल्डर्स हो, यानी कि जैसे कि एक विलेज है उसमें भी अलग अलग कल्चर के लोग रह सकते हैं, तो उनके बीच में कैसे चेंजेस लाने हैं और कैसे उनको एक साथ इंटीग्रेट करना है, ये सारी चीजें हैंडल करने के केपेबल हो। Then training and development in order to enable people develop their capacities and potential for productive employment डेवलप करने के लिए, ताकि वो अपनी कैपेसिटीज और पोटेंशियल के साथ काम कर सके, उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। देन नेक्स्ट इज strengthening Panchayati Raj and other organizations engaged in development। पंचायती राज को स्ट्रेंथन करना और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको एंगेज करना। देन इंक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी थ्रू टास्क क्लैरिटी एंड अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग एंड अप्रेजल मैकेनिज्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना ताकि टास्क क्लियरली मेंशन्ड हो और उन्हें मॉनिटर करना ताकि ये पता चल सके जो हमने टास्क या रोल्स असाइन किए हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। देन डेवलपिंग रोल क्लैरिटी एंड टास्क और रिजल्ट ओरिएंटेशन ऑन द पार्ट ऑफ फंक्शनरीज। उसके बाद है मोटिवेशन, कि फंक्शनरीज जो है हमारी वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही हैं, तो उनको मोटिवेट करना ताकि वो एंथुसियास्टिकली अपना काम कर सके। देन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड सिस्टम्स फॉर दोज इन्वॉल्व इन द रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टास्क। सो पर्टिकुलर रिवॉर्ड सिस्टम डेवलप करना ताकि जो लोग ठीक से काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट कर सके। Now here are some questions for you. First is write short note on HRD in defense services, and second question is make a comparison between the HRD practices in different sectors. That's all for this session. Thank you and have a nice day.